Yeah. Okay. So, hello everyone. Assalamu alaikum. Namaste. And thank you so much. So, मैं Shagufta Shehzadi and I'll be moderating in today's webinar. As a quick note, make sure this video will be recorded. And अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो शेयर ना हो तो आप अपने कैमरास को टर्न ऑफ कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपके कोई क्वेरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, कोई भी कंसर्न हो, आवाज का प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में लिखें। कोशिश करें कि आप अपने माइक्स को म्यूट रखें। और थर्ड जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिल जाएगा बाय द एंड ऑफ द वेबिनार एंड इसके लिए इट इज नेसेसरी दैट यू पीपल स्टे कनेक्टेड विद अस टिल द एंड ऑफ द वेबिनार एंड बाय द एंड ऑफ द वेबिनार हम एक शेयर करते हैं फीडबैक लिंक, आपको वो फिल करना होगा। उसके बाद आप एलिजिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं कि आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इस वेबिनार की आपको मिल जाएगी। So we have an amazing facilitator today with us. In fact, I must say a psychology wizard. So thank you so much, Dr. Hadia Pasha, for sparing some time despite your busy schedule. And I know आपके पूरे time में. I'll take 1 minute for Dr. Hadia Pasha's introduction and Dr. Hadia Pasha, and then I'll pass it over to you. So, Miss Hadia Pasha is Associate Director Counseling and Wellness at the Aga Khan University, Pakistan, with an extensive experience for more than 20 years in counseling. She is author of numerous counseling-related articles, and she has developed a comprehensive counseling program at the university and is particularly interested in positive outcomes. Ms. Hadia Pasha holds BA Honors in Psychology, a Master's and Post Magisterial Diploma in Clinical Psychology, and has completed her PhD also in Clinical Psychology, mashallah. So this shows she has a strong footing in her field. Not holding you anymore, Dr. Hadia. Thank you so much for being with us. Over to you. Thank you, Shagufta. Assalamu alaikum, everyone. It's a pleasure to have all of you here. May I request everyone to please check if their mics are on mute because while Shagufta was talking, I could hear some background noise. So please आप check कर लीजिए कि आपके mics जो हैं वो सबके mute हैं. So if I understand the format correctly, the question and answers will be held after the presentation. और उसके दौरान if you have any queries, please do put them forward and Shagufta and someone else will be recording them. So I am Dr. Hadia Pasha and today we are discussing how can we help children in their well-being, especially in times that we have these days. So I begin with the question. Does the concept of well-being change with time? When we say that we are focusing on students in 21st century, what are we focusing on? Are we saying that the concept of well-being has changed? Are we saying that because this century is different, we should do something different? And I would go with the latter. I would say that, as always, well-being has these different parts. There is one aspect that's physical, then there's emotional well-being, social, intellectual, and spiritual. So while we are working with them in any capacity, be it teacher, be it parent, these are all the aspects that we have to keep in consideration. How are we helping the child in feeling good and grow in all these areas? So we begin by using the word holistic. So in schools, there is a particular environment. The main focus is on imparting education, helping them in their learning, but we also keep in mind that they are learners, they are humans. वो बच्चे हैं जो बड़े हो रहे हैं और हम उनको एक इंसान की तरह मदद कर रहे हैं बड़े होने में, जिसका एक एस्पेक्ट लर्निंग है. This is different from the conservative
a view of schooling where schools were considered only institutions to impart learning. Um, Having all of you here makes it very clear that things have changed. Now, all of you are very much keen to view your learners as humans and helping them grow in their process. So, what are the basic requirements for personal well-being? And by the way, it's the same for all of us. It's not only with kids. So, what are things that we need? We need, or the student or the child needs to know their strengths and weaknesses, be okay with them, and also realize very accurately what they can do. So, self efficacy is knowing that I can do it. So, you might have noticed many students who have the capacity, you can see that they have the capacity, but they do not have the confidence. Why? Because they do not have the required self efficacy. They don't believe they can do it. So even if they have everything with them, do you think they will be enjoying well-being? No, they won't be enjoying well-being. Similarly, a second very, very important thing is regulating emotion. So there are many people who are intellectually really sound, but when it comes to being disturbed, they get disturbed very easily. They may, if they get depressed, it takes them a few days to get back on their feet. If they are anxious, they get so anxious that even when they know everything, their mind may go blank. And when it comes to actually performing, they are not able to. So the second very important thing is to regulate emotion. So in the researches that were done to understand the factors that personal factors that contribute in student success, one of the most important factors was the ability to regulate emotion. All your strengths, all your capacities go to waste if you are not in the right mindset to work or to learn or to deal with people. The third aspect is logical reasoning. We should be able to look at the real reasons behind things, make good, correct inferences. अभी ये हो रहा है तो ये हो जाएगा, ये इस वजह से हुआ. तो एक मे भी आप लोगों ने सुना होगा, there is a whole branch of cognitive behavioral therapy, वो CBT जिसको कहते हैं. और वो जो cognitive behavior therapy है, वो इसी चीज पे काम कर रही होती है, the way people are making wrong interpretations of the environment around them. So if someone does not talk to them properly, they might overgeneralize and feel nobody likes them. They may feel it's because of me. They may be unable to understand at that point in time that maybe this person has some problems of his own. So finding good reasons for things that are happening around us and making good predictions about future is one of the very important skills that we need for well-being. Assuming responsibility. So in people who have a tendency to blame others for their faults, for their problems, or who are too dependent on others, who may feel that, others should be taking care of me. So I wanted to do it, but I could not because of someone else. That again hinders anyone's progress towards achieving their goals. And this is a very important skill that as teachers, we should be trying to inculcate in our students. Making choices, healthy choices. Understanding that all the time we'll be faced with several possibilities and we have to develop good decision making skills and make choices that are well suited for the particular situation at hand. Problem solving. It's a skill जिस पे मेरा ख्याल है कि किसी को भी कोई बहस नहीं है. So even if you can manage your emotion, you assume responsibility. You can, understand things in your mind, but when it comes to actually doing something to resolve problem, you cannot bring yourself up to do.
So that would mean that most of your capacity would remain untapped. And if you are, in a problem, the problem would keep on going because you would not be doing enough to solve the problem. Another very important thing, which again we need to promote as teachers, is understanding other people's needs. So this is, in our language, this is called perspective taking, taking the other person's perspective. And this skill, I wonder if you can guess, when do we start developing this skill? We start developing this skill around the age of 3 years. And that is why in early childhood education, you would see that they start, helping kids realize that you have to wait for your turn. He's playing with the toy. You cannot take the toy right now. This is helping the child take someone else's perspective, making them realize that they are not the only one with needs, there are other people as well. And this is the basis for developing an empathetic personality later on. कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की तरफ से समझ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जिन्हें हम सेल्फिश कहते हैं आम अल्फाज में, हम उन्हें ईगोसेंट्रिक कहते हैं। तो वो जो लोग होते हैं उनके लिए असल बात ये होती है दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पर्सपेक्टिव। और आजकल का जो एक अजीब सा जमाना है मटेरियलिस्टिक, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट 21st सेंचुरी, इसमें देखो बहुत बड़ी एक तब्दीली आई है। So I look at my childhood. If I wanted to ask something, I would wait for my father to come back in the evening ताकि कोई बात हो तो मैं उनसे पूछ लूं। अब बच्चों को literally do you think they would have to wait for anyone? ये रहा मोबाइल, ये रहा गूगल, आप डालिए, आ गया। So they are so used to fulfilling their needs on their own that it's difficult for them to understand that other people may have their needs as well. एक चीज और ये हुई है कि since people are getting busier as time is passing, parents also sometimes would rely on technology to take care of the kids. और उस केस में ये होता है कि they keep on buying their kids new and new gadgets so that they remain engaged. और उसमें उस बच्चे को एक जो बहुत अनहेल्दी चीज डेवलप हो जाती है, वो एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होता है। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मीन्स I would want different things for myself and different things for someone else, just because I am जैसे वो घर में एक पैम्पर्ड बच्चा होता है, आपको उससे समझ में आ जाएगा, जिसके लिए कोई रूल नहीं होता, जिसके लिए अच्छा वाला खाना रखा जाता है, जिसके लिए सबसे महंगे वाले खिलौने खरीदे जा रहे होते हैं। ऐसे बच्चों में एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आ जाता है। दे एक्सपेक्ट लाइफ टू ट्रीट देम द सेम वे। ऐसे बच्चों को आपको स्कूल में हैंडल करने में बड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि उनको लगेगा भाई मेरी नई मर्जी है तो मैं क्यों करूं, मैं नहीं चाह रहा तो मैं क्यों करूं। Okay, so the next thing that we need to have and the kids need to have if they want to enjoy well-being is the ability to resolve conflicts positively. अच्छा देखिए, ये जो हर पॉइंट है ना, ये अपने अंदर एक पूरा सेशन है। तो आई एम सॉरी, हम बहुत डिटेल में तो इतने छोटे से टाइम में नहीं जा सकते, बट वी वुड ट्राई टू कवर एंड हैव सम आइडियाज सो दैट आपको जिस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट हो, यू कैन गो एंड रीड अबाउट इट लेटर ऑन फर्दर. And if you have any queries right now, we can always answer them after the session. Okay, so as teachers, in addition to teaching them what you want to teach, this is what we would want to promote in them: a growth mindset. A person with a growth mindset would look forward with goals and realistic plans. And they would focus more on what they can do by trying rather than focusing on कौन कितना इंटेलिजेंट है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस पर थोड़ा सा रुकूंगी,
क्योंकि हमें एक आदत है कि हम बच्चों को लेबल करते हैं, ये बहुत शरीर है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत तेज है। अब ये करके हम एज टीचर्स, एज पेरेंट्स, क्या हम उनकी एफर्ट को प्रमोट कर रहे हैं, या हम उन्हें बता रहे हैं तुम तो बस ऐसे ही हो, जब ऐसे ही हो तो बस फिर यही है? Do you think a child can develop a growth mindset if they are told that you are this? और अगर लेबल करना ही है तो आप उनको ये कह सकते हैं कि आप बहुत अच्छे हार्ड वर्किंग बच्चे हो, आप बहुत अच्छी कोशिश करते हो, आपने बड़ी मेहनत करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, आपने कितनी मेहनत से बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है, आपने छोटी छोटी चीजों का कितना ख्याल रखा है। So this is, I think, one of the key points that we need to understand. हमें पता भी नहीं लग रहा होता और हम खुद बच्चों की एबिलिटी पे उनको रेट कर रहे होते हैं rather than helping them focus on their effort and what they can do. So people who have a growth mindset also have this tendency to keep on monitoring how they are doing. ये जिम्मेदारी भी हम टीचर्स और पेरेंट्स अपने ऊपर ले लेते हैं, दिखाओ तुमने कितना किया, दिखाओ तुमने कैसा किया। So if we want them to have a growth mindset, and if we are having this discussion because we want them to enjoy their well-being, this is one thing more that they need to do. We have to give them an environment where they look after themselves, they monitor what they are doing, maybe starting with peer feedback, or maybe giving them timelines, और उसमें हर 3 दिन के बाद उनसे पूछना कि बेटा अच्छा चले, आपने अपने दोस्त को बताना है आपने कितना किया है, या मैं आपसे जब आप असाइनमेंट दोगे तो मुझे आपने हर 3 दिन में आपने मुझे बताना है कि आपने कितना किया है, rather than you telling them at the last moment मैंने तो आपको हफ्ते से बताया हुआ था आपने क्यों नहीं किया। Encourage them to go back, monitor their own work. बड़ी इंटरेस्टिंग चीज थी जब से ये जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, we hear from mothers of young kids, they are really fed up because पहले स्कूल जो संभाल लेता था बच्चों को, अब वो बच्चे घर पे होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही होती हैं, they find it difficult to pay attention. And there were many mothers who were telling me कि हम तो literally बच्चा तो सो रहा होता है, हम बैठ के उसकी पूरी क्लास के नोट्स ले रहे होते हैं। So you really think that a child who is being allowed to sleep during class and mother is taking notes is the mother or the teacher letting the child grow or develop or exert self-control? Nothing of the sort. तो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो अब कोविड के बाद हुआ है वो ये हुआ है कि टीचर्स का रोल ऑनलाइन क्लासेस में मिनिमल हो गया। Many times they even do not ask the students to keep their videos on. वीडियोस भी बंद करवा लेते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि बच्चा सो रहा है, जाग रहा है, मोबाइल पे बैठा हुआ खेल रहा है या क्या कर रहा है। Okay, so people with a growth mindset also believe in constant improvement. We can relate this to the point about ability. अगर आप किसी को कह देते हो तुम इसलिए अच्छा कर रहे हो क्योंकि तुम इंटेलिजेंट हो, तो इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। लेकिन अगर आप किसी को ये कहते हैं कि तुम इसलिए अच्छा कर रहे हो क्योंकि तुमने इसके लिए बहुत कोशिश की है, बहुत अच्छे से मेहनत की है, there is always room for improvement. You can always try better. You can always do more. So if you want your kids to develop a growth mindset, focus on things that they can work on and develop. Again, many times, okay, so I have many anecdotes because I work with students. So there was this girl, she used to always come first or second in the medical college. And she had always been a very high achiever. But strangely, before any exam, she would be anxious to the point of not sleeping, crying for hours, losing weight, and whatnot. Calling friends for 2 hours, crying in front of them, asking for help, asking for support. So I really could not understand. She was so
hardworking and she had a consistent performance. Why was she so anxious? And she would say, and her father was a surgeon, by the way, and her mother was also a doctor. And when I asked her, how's the family environment? Have they pushed you, that you have to achieve? She said, no, ma'am, they have never pushed me. I really could not make sense. Why is she so anxious then? So after a few sessions, one day she told me while she was talking about her father, and yeah, she was coming second, not first in her class. And by the way, when we talk about AKU Medical College, we are talking about the top 100 students in Pakistan. Every student is a star student. They are the topmost students in their education institution. So coming first or second in them is a big deal, big deal. So while I was asking her that why is she so concerned and what bothers her, what's her father's attitude, so she said, हाँ मैम ये होता था कि अगर छोटे होते कभी मैं फर्स्ट नहीं आऊं तो वो कुछ डांटते नहीं थे मुझे, उन्होंने कभी नहीं डांटा, बस ये पूछते थे अच्छा फर्स्ट कौन आया, और कहती थी मैम उसके बाद मैं सोचती थी कि मैं फर्स्ट तो नहीं आई ना तो फिर फायदा क्या मैं जो भी आई। सिर्फ ये एक जुमला बोल के हर दफा उसके अब्बा अच्छा फर्स्ट कौन आया, उसको ये एहसास दिलाते थे कि तुम उस बंदे से पीछे रह गई, और चाहे वो उसको डांटते नहीं थे वो उसको ये एहसास दिला देते थे कि मेरे लिए ये जरूरी है कि तुम फर्स्ट आओ, और फर्स्ट नहीं आए तो कुछ भी आ जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसलिए उसके दिमाग में ये ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग डेवलप हो गई थी कि या फर्स्ट या कुछ नहीं, और जब वो सेकंड आती थी तो उसकी एंजाइटी आसमान पे पहुंच जाती। जस्ट टू टेल यू कि जब हमें बच्चों को उनकी एजुकेशन बतानी है तो हमने उनको उस टास्क को मास्टर करना सिखाना है, कि तुम्हें मुझे खुश करने के लिए पढ़ना नहीं, तुम्हें मुझे खुश करने के लिए नहीं पढ़ना, तुम्हें इसलिए पढ़ना है ताकि तुम्हें नहीं, ताकि तुम्हें अपना काम अच्छे से आए। ओके, सो ग्रोथ माइंडसेट में एक और चीज होती है और वो है चैलेंजेस से डरना नहीं होता और उनको थ्रेट नहीं समझना। Obviously, life will throw challenges on us, and people who have a growth mindset would not be scared and they would stick and work on the challenge. इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट आते हैं, कोपिंग स्किल्स आते हैं, परसिस्टेंस आती है, सेल्फ रेगुलेशन आती है, ये भी एक बहुत ब्रॉड टॉपिक। अच्छा जी, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इफ अ पर्सन हैज अ ग्रोथ माइंडसेट, when you give them a feedback that is not very positive, they do not feel threatened, they do not become defensive, they do not try to give excuses, they try to see what are you trying to give them. And similarly, when they see others going forward rather than feeling threatened, they want to see and learn what are they doing that I can do to go forward. So for them, criticism or other people's success is not a threat, it's a learning opportunity. Those are the situations where they feel they can use that stepping stone to go up rather than feeling down at that moment. Okay, so I have this, Shagufta, I have this message. I think we need to log on again. No, not now. Still we have 10 minutes. जब लास्ट में 1 मिनट रहेगा तो हम बताएंगे कि 10 मिनट्स के बाद दोबारा से लॉग इन होना है. So please continue. Okay. Okay, so these are the list of behaviors that teachers might see when well-being is in danger. So there are two types of behaviors. One are externalizing, where there is behavioral issues, clear behavioral issues, where the child is taking it out on others. Internalizing behaviors are the ones where the child is taking it in on himself or herself. Interestingly, if you look at the above category of the externalizing behaviors, you would find that these are the behaviors teachers are most concerned with.
And that is the reason for me to bring them here. Just because a child is not expressing, just because he sits quietly in the corner, it does not mean the kid is enjoying well-being. सिर्फ इसलिए कि वो आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं कर रहा, you do not ignore the kid. You do not let it be. होता यह है कि हम इमीडिएट क्लासरूम मैनेजमेंट क्योंकि उससे खराब नहीं हो रही होती तो शुक्र का सांस लेते हैं कि भाई चलो कम से कम क्लास तो डिस्टर्ब नहीं हो रही ना हमारी। और जो ऊपर वाले एक्सटर्नलाइजिंग बिहेवियर्स हैं उनमें क्योंकि बच्चा शोर मचा रहा होता है या दूसरों को तंग कर रहा होता है या चीट कर रहा होता है या आपकी बात नहीं मान रहा होता, उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना हमारे लिए जरूरी हमें बहुत लग रहा होता है क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है। बट हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इंटरनलाइजिंग बिहेवियर्स को इग्नोर नहीं करना है और उनके लिए डिसिप्लिनरिंग स्ट्रेटजीज जाहिर है नहीं यूज होंगी, उनके लिए एनकरेजिंग स्ट्रेटजीज यूज होंगी। और उनके लिए जो स्ट्रेटजीज यूज होंगी वो होंगी जिनमें आप एज ए ह्यूमन अपने आप को उनके लिए अवेलेबल करते हैं ताकि वो आपसे खुल के बात कर सके। Very interestingly, we feel that if we give love to a child, the child would grow. I have included this slide because we need to understand that loving a child may not necessarily help him grow. जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा था कि जो बहुत पैम्पर्ड बच्चे होते हैं वो ग्रो नहीं कर रहे होते, बल्कि वो तो टिपिकली फ्रस्ट्रेशन को फेस ही नहीं कर सकते क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उनको इतना पैम्पर किया हुआ होता है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होती है एंड दे फील लाइक गिविंग अप बिकॉज दे हैव नेवर सीन डिफीट. So loving a child doesn't mean giving in to all his whims. To love him is to bring out the best in him, to teach him to love what is difficult. सिर्फ उसको अच्छा खिलाना, अच्छा पहनाना, अच्छे गैजेट्स देना, अच्छी अच्छी जगहों पे घुमा फिरा के ले आना, महंगी जगहों से डिनर करा देना, believe me, this is not good parenting. और स्कूल में भी just telling him, oh, you are such a nice kid, this is not enough. This does not teach them to face challenges. इसमें हम थोड़ी बाद में बात करेंगे कि किस तरह का फीडबैक देना या किस तरह का एनकरेजमेंट देना बेहतर होता है. So there's another person who says that thinking of love as an action rather than as a feeling is one way in which anyone using the word automatically assumes accountability and responsibility. वो एक जगह मैंने एक स्टिकर देखा था बहुत पहले, don't say you love me, show me. So there are many, I mean, if we have many women here, and even if men are married, you may recall instances when, you were feeling the other person doesn't love you. Okay, क्या मैं बोलता रहूं क्या? मैं क्या करूं बताने के लिए तुम्हें that I love you? I love you, it's in here. But that does not make you happy because, it's in here. How does it make any difference? So, showing the child that if you love me, you just do not come just and hug me, you have to do something for me. That teaches the person to take responsibility for what they feel, for their actions. And this is a very important lesson as a teacher as well. शाबाश बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो. वो क्या करें इस अच्छे बच्चे का? You have to tell them exactly what did they do good. You have to tell them exactly, okay, so I'm happy with what you're doing, so let's do this. So you model this behavior to them that if I like what you do, this is what we get, rather than just one sentence line. बहुत अच्छी बात है. Okay, so this is a new topic. Please continue. So now we'll discuss 3 approaches that are used by teachers. So the first one is the typical conventional behavioral management approach, where we are focusing on discipline and on making children do what we want them to do. It is based on reward and punishment.
If they do something right, reward them. If they do something wrong, punish them. तो इसकी अच्छाई क्या है? अच्छाई ये है फट करके रिजल्ट मिल जाते हैं। जाहिर है बच्चे को छड़ी पड़ती है, या उसको क्लास में आप साइड पे खड़ा कर देते हो, या आप उसको कोई भी पनिशमेंट देते हो, आपको रिजल्ट मिल जाता है। आप उसको रिवॉर्ड देते हो, उसको स्टिकर्स देते हो, उसको हैप्पी फेस बना देते हो, या आप उसका सबके सामने खड़ा करके नाम लेते हो, उसकी तारीफ करते हो, इमीडिएटली आपको उसका रिजल्ट मिल जाता है। मसला क्या है? मसला ये है कि बच्चे फिर बहुत चांस होता है कि डिपेंडेंट हो जाएंगे रिवॉर्ड और पनिशमेंट। इसमें एक, अभी चले इसको नीचे आके डिस्कस करेंगे। अगर वो आप उनको कभी भी उस चीज को अंदर नहीं लेने दे रहे, आप तुम ये इसलिए करो वरना ये हो जाएगा, तुम ये इस तरह करो वरना ये हो जाएगा, तो जब वो वरना नहीं होता तो बच्चे के पास कोई रीजन नहीं होता वो चीज करने के लिए। तो इसका एक फ्लॉ ये है कि you take strategies to help them internalize it. When reward and punishment is not there, it stops working. दूसरी बात यह है कि अगर आप एक अच्छा पनिशमेंट अच्छी चीज नहीं है तो क्या रिवॉर्ड अच्छी चीज है? बहुत ज्यादा रिवॉर्ड के लिए एक देने में और एम्फेसिस की ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो तुम्हारा सबके सामने नाम लिया जाएगा, ये करोगे तो तुम्हें प्रिंसिपल बुला के ये करेंगी, बच्चों में एक सेंस ऑफ कंपटीशन डेवलप हो जाता है, और अगर उसको चेक में नहीं रखा जाए तो वो अनहेल्दी भी हो सकता है। दूसरी चीज, अब वो सब कुछ अप्रूवल के लिए कर रहे हैं, वो मास्टरी के लिए तो नहीं कर रहे। वो इसलिए कर रहे हैं कि मुझे स्टिकर मिलेगा, वो इसलिए कर रहे हैं कि मुझे ये। तो आप इसका अगर हम प्योर बिहेवियरल अप्रोच की बात करें तो वो दिमाग के अंदर और दिल के अंदर जो चल रहा होता है वो उस पर बॉदर नहीं करती। उनका ताल्लुक बिहेवियर से होता है। वो कहते हैं आप हमें एक बच्चा दो, आप बताओ उसको क्या करवाना है, हम रिवॉर्ड और पनिशमेंट करवा देंगे। तो उसमें मसले ये होते हैं कि अगर हम वेल बीइंग की बात कर रहे हैं तो लिटरली दिस इज द लास्ट थिंग दे वुड बी कंसर्न्ड। अच्छा, पनिशमेंट में क्या? जाहिर है हम सबको पता है कि पनिशमेंट में या तो गुस्सा आता है बच्चे में, या बगावत आती है, या फिर वो बिल्कुल यानी गिव अप कर देता है। ओके, जो जहां पे उसको हिम्मत करनी चाहिए वहां भी हिम्मत छोड़ देता है। जी डॉक्टर हादिया, हमारे पास जी जी 1 मिनट जी से लेस टाइम है जी। We discussed behavior management approach. Now we will discuss the cognitive constructivist approach. People who are from IED would remember constructivism. बड़ा डिस्कशन होता है आईडी में कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे। So constructivist approach is of two types. One is cognitive constructive approach. In this, the focus is on the kid's internal developmental process. So you must remember Piaget. आप लोगों ने Piaget को जरूर, जो लोग childhood development पढ़ते हैं उन्होंने जरूर पढ़ा होगा, stages of cognitive development. So it's basically based on his theory, and it believes that children construct knowledge based on their developmental stage that they are in. So at various stages, there are different cognitive capacities that they can utilize. And then it's the teacher's role is to provide them an environment where they can make use of the processes that are within them, the capacities they are within them. The teacher does not impart them on the child. They just provide an engaging environment जहाँ पे वो बच्चे की जो कैपेसिटी, अगर वो समझ सकता है कि 1 2 3 4 5, तो अगर हम ऐड करें तो वो उतना ही है जितना 5 4 3 2 1 को ऐड करें तो हो जाएगा। Am I making myself clear? ये एक कॉग्निटिव कैपेसिटी है जो कि 1 से पहले बच्चों में नहीं आएगी। आप अगर 5-6 साल के बच्चे से कहें कि अच्छा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या बराबर होता है 5 + 4 + 3 + 2 + 1 के, तो वो कहेगा नहीं, उसके लिए ये बराबर नहीं है। या अगर आप लिखें 2 + 2 + 2 + 2 + 2 और एक तरफ आप लिख दें 3 + 3 + 1 और आप उससे पूछें ये दोनों बराबर हैं, वो कहेगा नहीं। उसको नजर आ रहा होगा ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, जो छोटे बच्चे होते हैं।
ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रही हूँ कि कॉग्निटिव कैपेसिटी एज के साथ चेंज होती है, और टीचर्स का ये रोल होता है कि वो इन्वायरमेंट में इस तरह की चीजें रखें, इस तरह का मटेरियल रखें, टीचिंग के लेसन प्लान्स ऐसे बनाएं उस डेवलपमेंटल स्टेज पे जो बच्चे की स्किल्स हैं, जो कैपेसिटीज हैं, वो यूटिलाइज हो। तो मेन फोकस इसमें लर्निंग पे होता है। टिपिकली अगर एक टीचर इज फॉलोइंग कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, तो उनकी क्लासेस बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगी, इंटरेस्टिंग होंगी, कलरफुल होंगी, एंगेजिंग होंगी, जहां वो मैनिपुलेट कर सकते हैं मटेरियल को अलग अलग तरीके से। और उसमें जो टीचर्स का रोल होता है वो जो जो बच्चों से आपस में मसले होते हैं उसको भी ऐसे Can everybody please turn their mic off, please? हेलो प्लीज उमेर आप अपना माइक ऑफ करें, यास्मीन अकरम प्लीज आप अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। एडमिन राइट्स फैसिलिटेटर के पास है और वो सेशन के दौरान ये सारा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। प्लीज आप अपने माइक्स को म्यूट रखें। यास्मीन अकरम प्लीज। हुमेरा प्लीज आप अपना माइक म्यूट रखें। थैंक यू। Okay, so in this approach, it is believed that the mistakes that a child is making is because the child is trying to learn, और क्योंकि वो उसमें नई नई चीजें ट्राई कर रहा है, उससे जो गलती होती है वो गलती नहीं है, वो मिस्टेकन बिहेवियर है। यानी हम उसको गलती नहीं बोलेंगे, हम ये कहेंगे कि उसके बिहेवियर के अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, और उस पे उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि उसको हेल्प करना चाहिए कि इस चीज को ऐसे भी किया जा सकता है। यानी उन चीजों को उनकी अटेम्प्ट समझा जा रहा होता है टू डील विद द चैलेंजेस दैट आर कमिंग देयर। इसीलिए इसमें जो इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट है उसमें भी कोशिश की जाती है कि कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस किया जाए, और ये समझने की कोशिश की जाए कि वो अपनी कौन सी नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा था जिसकी वजह से मसला खड़ा हुआ। सिमिलरली अगर कोई बच्चा डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी भी कोई नीड है, उसकी डेवलपमेंटल कोई नीड है जो कि फुलफिल नहीं हो रही, जिस वजह से वो डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहा है। अब क्योंकि एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन डिस्कवरी लर्निंग, you facilitate the learning, the capacities that the child has within them. तो इसका फायदा तो ये है कि बच्चों में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग की कैपेसिटी बढ़ती है। दे लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम वेरियस पर्सपेक्टिव्स, टू मैनिपुलेट थिंग्स। मसला इसमें तब आता है कि अगर हम सोशल सिचुएशंस की बात करें, where there can be many responses that are wrong and there can be many responses that are not right, उसमें अगर हम कभी बच्चे को बिल्कुल डिस्कवरी पे छोड़ दें तो उसमें काफी दफा कंफ्यूजन का चांस है, और उसमें अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जाए तो फिर ये भी होता है कि बच्चे को लगेगा कि मैंने एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक चीज की वो सही है, जबकि वो सही नहीं हो। तो फॉर एजुकेशनल पर्पसेस टिपिकल करिकुलम जो वो वाला है आपका लर्निंग करिकुलम है, उसके लिए आप कह सकते हैं कि इट्स अ गुड अप्रोच। सोशल लर्निंग में ये पूरा मकसद हल नहीं करती। क्यों? इसमें इतना एम्फेसिस बच्चे के इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेसेस पे है कि आप उसमें बहुत तवज्जो नहीं दे पाते उसकी फैमिली सर्कमस्टेंसेस, वो किस घर से आ रहा है, उसका माहौल कैसा है, उसकी क्या इमोशनल प्रॉब्लम्स है। हर चीज कॉग्निटिव तो नहीं होती ना, बहुत सी चीजें इमोशनल भी होती हैं। और इसमें दूसरी चीज जो प्रॉब्लम करती है वो ये होती है कि कुछ बच्चे अगर डेवलपमेंटली स्लो हैं, वो वहां उस लेवल पे नहीं है, तो उनके लिए फिर एक क्लासरूम, एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट सेटिंग उनके लिए अप्रोप्रिएट नहीं। और फिर उसमें अगर हम सिर्फ इस अप्रोच की बात करें तो देयर नीड टू बी सेपरेट spaces and places for people who are at different developmental stages, क्योंकि यहाँ बात हम उम्र की क्रोनोलॉजिकल एज की नहीं करते, हम डेवलपमेंटल एज की बात करते हैं।
कि डेवलपमेंटली वो जहाँ पे है हम उस हिसाब से उनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें। सिमिलरली इसी तरह अगर आप देखें प्री स्कूल की आप बात करें, अगर एक बच्चे की लिंग्विस्टिक कैपेसिटीज नहीं है, उसको जो सपोर्ट दी जाएगी वो बहुत डिफरेंट होगी उससे जो कि दूसरे को दी जाएगी जिसकी लैंग्वेज स्किल्स बहुत वेल डेवलप्ड है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। बड़ी क्लासेस में भी ऐसा ही होता है। जनरली वी एक्सेप्ट कि 11-12 साल के बाद बच्चों में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी डेवलप होनी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत जल्दी इससे डेवलप कर लेते हैं और कुछ 16 साल तक भी नहीं कर पाते। उनको फिजिक्स हमेशा मुश्किल लगेगा, क्यों? उनमें एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स अभी नहीं डेवलप हुए। उनको सिंबॉलिक चीजें ऐसी मुश्किल लगेंगी क्योंकि सिंबॉलिक चीजें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पे डेवलप होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। तो इसमें अगर हम प्योर कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच पे जाएं तो उसमें जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये कि वो फैमिली एनवायरनमेंट को नहीं करेगी, सोशल एस्पेक्ट में ये बहुत अच्छी कवरेज नहीं देती, लर्निंग के एस्पेक्ट में अगर हम डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट ग्रुप्स बना लें तो इट सर्व्स अ वेरी गुड पर्पस। The third type of approach that the teachers might take is social constructivist approach. आप लोगों ने जो लोग एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड हैं, आप लोगों ने यकीनन ज़ाइगोट्स्की का बहुत नाम सुना होगा, जिसमें उसका ये वाली थ्योरी ज़ाइगोट्स्की के ऊपर डिपेंडेंट है और उस पे बेसिकली बात ये थी कि जो भी बच्चा सीखता है वो उसका जो एनवायरनमेंट है और जो लोग उसके इर्द गिर्द हैं उनसे इंटरेक्शन के थ्रू सीखता है। उससे पेरेंट्स बातें करते हैं, उसके इर्द गिर्द चीजें होती हैं, और लैंग्वेज इज द बेसिक स्किल, द बेसिक मीन्स फॉर डेवलपिंग नॉलेज। और उसमें जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मीन्स अ जोन, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे का ये लेवल है, वो अभी यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो जोन है, दिस इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी आप बच्चे के साथ मिलकर कोशिश करें तो वो यहाँ आ जाए। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इन नियर प्रॉक्सिमिटी टू द करंट लेवल। और इस अप्रोच के लिहाज से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ द टीचर इज टू वर्क इन द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। That would help the student to feel good because they will have the sense of achievement. It would help them grow. It will help them focus on, the fact that if they try hard enough, they learn more. And they are not fixed on a particular level. तो अगर आप इसको समझें तो ये बहुत ज्यादा उस चीज से रिलेट करती है वो जो हमने शुरू में बात की थी, फोकसिंग ऑन एफर्ट रादर देन एबिलिटी। क्योंकि इसमें बच्चे को आप हर वक्त थोड़ा सा ऊपर जाने के लिए उसको आप एम्पावर कर रहे हो। इस प्रोसेस को, एम्पावरिंग प्रोसेस को, वेयर यू गिव देम सपोर्ट्स व्हिच दे कैन यूज टू क्लाइंब टू अपर लेवल, उसको स्कैफोल्डिंग, वेयर यू गिव देम अ स्ट्रक्चर, अ सपोर्ट, जिससे वो अभी उनका जो शेकी ग्राउंड है वो सॉलिड हो जाता है, एंड देन दे डेवलप देयर ओन इंक्रीज्ड लेवल। इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि इट्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन, इसमें फैमिली को, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, बच्चे के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को, उसके रिसोर्सेस को, उसके पीयर ग्रुप को, सबको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज आर द इंटरेक्शंस दैट द चाइल्ड हैज। और इसमें जो बच्चे का डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है उसको भी ये कहा जाता है कि जो उसकी लाइफ में इंटरेक्शंस हैं उनमें कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी स्ट्रेसेस हैं, कुछ ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो ये बच्चा हैंडल नहीं कर पा रहा, और जितने भी इसके जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स हैं वो उस अनमैनेजेबल स्ट्रेस की मैनिफेस्टेशन, क्योंकि वो स्ट्रेस वो हैंडल नहीं कर पाया और अभी इस तरीके से उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसमें पार्टनरशिप विद फैमिलीज इज वेरी यू सी अ प्रॉब्लम, आप अपने ओन पे उसको रिवॉर्ड पनिशमेंट देके ठीक करने की कोशिश नहीं करते, आप समझने की भी कोशिश करते हैं कि वो कौन से ऐसे स्ट्रेसेस लेके आ रहा है, क्या ऐसे उसके इंटरेक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं
जो ये चीज इस तरह से हो रही है। इसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स नहीं है, सवाए इसके कि अगर आपको नजर आ रहा हो कि इसमें एक टीचर की इंडिविजुअल एफर्ट बहुत ज्यादा मैटर करती है। और हमारे जो टिपिकल सेटिंग्स होती हैं वेयर देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स इन अ क्लास वेयर देयर पेरेंट्स आर लीस्ट कंसर्न, वो स्कूल भेज रहे हैं कि बच्चा बस पढ़ के आ जाए वहां से, और उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा जो पढ़ रहा है वो याद कर ले हिल हिल के और वो सुना सके। तो हमारे जो एज टीचर्स हमारे लिए प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होंगे। के लिए गई थी ना, या उसका हवा ने बुलाया होगा। हेलो हेलो, प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें। Okay, so here's a recap. If we need to promote emotional well-being, हमने जो सारी बातें की शुरू में, ग्रोथ माइंडसेट की और हेल्दी बिहेवियर्स की, सबसे पहली बात, द चाइल्ड नीड्स टू फील गुड अबाउट हिमसेल्फ, बट इट हैज टू बी रियलिस्टिक। ये नहीं कि उसकी हैंड राइटिंग बुरी है या वो अच्छा काम मेहनत से नहीं करता, वो थोड़ा सा भी करके दे दे, अरे कितना प्यारा बनाया तुमने, इट हैज टू बी रियलिस्टिक। अगर आप बच्चे को अनरियलिस्टिक एप्रिसिएशन देंगे, जब वो बाहर जाएगा तो वो उसी तरह का काम देके एक्सपेक्ट करेगा कि उसको एप्रिसिएशन मिले और उसको नहीं मिलेगी, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो उसको एप्रिसिएशन देते हुए उसको क्या करना है, एक स्टेप ऊपर की तरफ लाना है। रियलिस्टिक, हेल्दी, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इतना अच्छा ये बनाया, आई एम श्योर कि तुम ये भी बहुत अच्छा बना सकते हो। देखो तुमने इस चीज पे कितना अच्छा लिखा था, क्या ख्याल है अगर ये चीज ऐसे कर ली जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है, डिस्कसिंग एंड हेल्पिंग देम ग्रो rather than offering them false appreciation. Being considerate and respectful for others, ये हमने जो पर्सपेक्टिव टेकिंग की बात की थी। Develop skills to manage stressors, emotional regulation की, embracing challenges, practicing self control and pro social behaviors, दूसरों को मदद करना, दूसरों का ख्याल करना, काइंडनेस दिखाना, अपनी ख्वाहिशों को रोकना, being self directed, responsible and productive। देखिए आप ये सिर्फ 5 पॉइंट अगर अपने जहन में रखें, अभी हम थोड़ी सी बात स्ट्रेटजीज पे भी करेंगे कि व्हाट टू डू टू इनकलकेट दीज। हर किसी, आप सब अलग अलग इन्वायरमेंट से हैं, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ यू आर फ्रॉम डिफरेंट सेटिंग्स। You have to keep the basic ideas in your mind and find things that work in your setting. There is no one size fit all recommendation. अच्छा, अब हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज की। पहली बात, क्लास के अलावा या क्लास के बीच में भी पर्सनल कांटेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश करें। इस उम्र में भी मुझे याद है कि वो कौन सी टीचर थी जिन्होंने नोट किया था कि मैं कई दिन से देख रही हूँ कि तुम्हारी आंखें अजीब सी हो रही हैं, तुम्हें बुखार तो नहीं रह रहा। आज तक मुझे याद है, आज तक मुझे याद है जब एक टीचर ने ये बात बोली थी कि क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कि आपके काम में मिस्टेक्स हो रही हैं, पहले तो आपके काम में मिस्टेक्स नहीं होती थी। और उन्होंने मेरे साथ 5-10 मिनट बात की। कभी नहीं भूलता बच्चों को, और उनके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि आप ये पर्सनल कांटेक्ट उनसे डेवलप करें, उनसे सुने उनकी बात, वो क्या कहना चाह रहे हैं। सिर्फ एक छोटी सी बात, जाते जाते उस बच्चे का हेयर स्टाइल चेंज हुआ, जाता रुके, ओ हेयर स्टाइल चेंज किया, अच्छे लग रहे हो, ये भी एक पर्सनल कांटेक्ट है। सेकंड चीज, क्लियर कंसिस्टेंट बाउंड्रीज। इसको मैं जितना एम्फसाइज करूं उतना कम है, क्योंकि एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, वी हैव दिस टेंडेंसी टू let students get away when they break the boundaries. Boundary के अंदर let them be flexible, allow change, allow different ways of doing something, achieving a goal. लेकिन जो आपकी बाउंड्री है, देखिए there is one thing which is called intermittent reinforcement. Intermittent reinforcement का मतलब ये है एक ही चीज पे कभी आप उसको सजा दे देते हो, कभी नहीं देते हो।
अब हर दफा वो इस वजह से वो चीज करेगा कि शायद इस दफा ना मिले, शायद इस दफा आई कैन गेट अवे विद इट। तो जो बच्चे जिद्दी होते हैं, आप जब भी उनके पेरेंट्स से बात करके इस बात को डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके पेरेंट्स टिपिकली इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, टिपिकली क्या करूं, इतनी जिद कर रहा था फिर मैंने करने दिया, उनका टिपिकल जुमला होता है। और हर दफा बच्चा फिर 1 घंटे के बजाय 1.5 घंटा जिद करता है कि भाई 1 घंटे के बाद काम हो जाता है, क्या पता इस दफा 1.5 घंटे के बाद काम हो जाए। So it's so important to emphasize that set clear, consistent boundaries. Do not let kid break boundaries, but allow for changes, allow for flexibility within the boundary. Similarly, आप उनको उसी तरह डील करें जैसे आप अपने किसी बड़े को करें। उनके लिए थोड़ी सी हाई, रियलिस्टिकली हाई, अगेन ये बात आ जाती है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की और स्कैफोल्डिंग की। Set realistically high expectations for them. Create classroom environments that promote independence. हर चीज आपकी इंस्ट्रक्शंस उन्हें फॉलो नहीं करनी हो, उनके पास रूम हो that they can make choices, और मटेरियल एंगेजिंग हो। उन्हें इसलिए नहीं करना हो कि नहीं करेंगे तो सजा मिलेगी, उसको इस तरह प्रेजेंट करें कि वो उनके लिए एंगेजिंग हो। मेरी सबसे छोटी बेटी इस वक्त O लेवल्स में है और कंप्यूटर स्टडीज उसका हमेशा से फेवरेट सब्जेक्ट था, एंड शी वाज ऑल सेट टू टेक दैट फील्ड। दिस ईयर हर टीचर चेंज्ड, और पिछले महीने में मुझे बैठी हुई कह रही थी कि अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं A-levels में कंप्यूटर्स लूं या नहीं लूं। मैंने कहा ये क्या हो गया तुम्हें? तो कहने लगी अम्मी मुझे अचानक ऐसा लग रहा है जैसे आई डू नॉट लाइक कंप्यूटर्स, और मुझे पता नहीं बोरियत भी हो रही है, लग रहा है मुझे कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब डिस्कशन किया तो पता लगा कुछ नहीं हुआ था टीचर से। And the same subject when taught by another teacher is so boring and is presented in a way that someone who has been a star student of that subject is now thinking of dropping the subject later on. इतना important है कि आप मटेरियल को engaging रखें, at the level of kids रखें। Provide opportunities for meaningful participation. Increase pro-social bonding. बच्चों की टीम्स बनवाएं, ग्रुप्स बनवाएं, मिलके काम करवाएं, एक दूसरे को हेल्प करने की तरगीब दें। Help them resolve problems, find solutions. उनसे डिस्कशन करें, आप नहीं बताया इसको ऐसे कर लो, उनसे पूछो तुम्हें क्या लगता है, क्या कर सकते हैं। And most of all, please be good models yourself. आपको गुस्सा आया और आप चीख चीख के बच्चों को डांट रहे हैं और आप उनसे कह रहे हैं तुम अपने पीयर पे चीख क्यों रहे हो, आपने तो सिखाया था। It's the same for parents, it's the same for teachers. Okay, I'm sorry for this content, बहुत सारा है और ये आखिरी है, प्लीज थोड़ा सा हिम्मत रखिए। Promoting positive discipline. As teachers, we are very bent on promoting discipline. How to do it positively? समझने की कोशिश कीजिए बच्चा ये क्यों कर रहा है। सिर्फ बिहेवियर मैनेज नहीं करें, बच्चे से बात भी करें। Tell the child what to do rather than what not to do. बजाय ये कहने के भाग क्यों रहे हो, भागो नहीं बेटा, आराम से चलिए। शोर क्यों मचा रहे हो बेटा, यहाँ पे आराम से बात करनी होती है। Keep it positive rather than negative. And even if you tell them शोर नहीं करो, follow it up with बातें करनी है तो आराम से कीजिए। Tell them then okay, ये नहीं करना तो क्या करना है। Discuss reasons for following rules. उनसे बात करें कि मैं इसलिए नहीं करूँ क्योंकि मैं कह रहा हूँ, इसलिए करो क्योंकि देखो इससे आप सबका फायदा है। This is how it helps. Point out positive behavior. उसने कुछ अच्छा किया, उसको बताएं हाँ मैं देख रही हूँ आज तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हाँ मैं देख रहा हूँ आज तुमने ये चीज कितनी अच्छे तरीके से की। Help them see the effects of their actions on other people. उन्होंने किसी की कॉपी इधर कर दी, पेंसिल ले ली, help them see. Help them see कि इससे दूसरे बच्चे पे क्या इफेक्ट हुआ है। Punishment should be as much as possible natural consequences of their actions. इन्हें कॉपी फाड़ दी, पेज फाड़ दिया, काम नहीं किया अपना टाइम पे, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस
टाइम पे काम नहीं किया तो ब्रेक टाइम में काम खत्म करो। दैट्स अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट। उससे ये कहना कि कान पकड़ के साइड पे खड़े हो जाओ, थिंकिंग चेयर पे जाके बैठ जाओ, दिस इज नॉट अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉट फिनिशिंग वर्क ऑन टाइम। As much as possible, try to face them natural consequences of their action. Try when then, वो कंटिजेंसी होता है ना, अच्छा देखो अब हमने ये कर लिया तो अब हम ये करेंगे, so they know for the next time कि जब हमने ये कर लिया तो अगली दफा ऐसा होगा। Another thing, offer choices when possible. जैसे अगर आपने उनसे एक असाइनमेंट लिखवाना है तो बजाय इसके आप कहें कि ये 2 टॉपिक्स हैं इन पे लिख के लाओ, 5 टॉपिक्स दे दें, इनमें से 2 चूज कर दो। गिव देम चॉइसेस एज मच एज पॉसिबल। गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे। किसी पे गुस्सा आ रहा है, चीख चीख के बात कर रहे हैं, उन्हें मॉडल करके बताएं, देखो बेटा इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं। टीच देम व्हेन यू कैन, हेल्प देम एक्सप्रेस फीलिंग्स इन अ रिस्पेक्टफुल वे। अब क्योंकि आप लोगों ने स्पेशली टॉपिक में 21st सेंचुरी रखा है तो मुझे लग रहा था कि इन पिक्चर्स के बगैर तो ये सेशन कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि these are some of the challenges that we as adults face when we are dealing with kids in this century. Too much technology. ध्यान से इन पिक्चर्स को देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। 5 पिक्चर्स हैं, अभी मैं आपको 5 दूसरी पिक्चर्स दिखाऊंगी और फिर हम उसको अपने डिस्कशन में डिस्कस करेंगे कि इन 5 पिक्चर्स में और दूसरी 5 पिक्चर्स में क्या फर्क है। If you notice, technology is both in both places. इन पिक्चर्स में भी टेक्नोलॉजी है और इन पिक्चर्स में भी टेक्नोलॉजी। As parents, as educators, make note of what's different. One looks back with appreciation to the brilliant teachers, but with gratitude to those who touched our human feelings. The curriculum is so much necessary raw material, but warmth is the vital element for growing plant and for the soul of the child. This was said by a classic psychologist, Carl Jung. Thank you very much, and I open the floor for questions. Thank you so much, Dr. Hadia. It's such a wonderful, in fact, it's such an amazing practical tips you have shared with us. बहुत मजा आ रहा था. इनफैक्ट मैं खुद भी एक वो रिकॉल कर रही थी कि घर पे क्या हो रहा होता है, मैं अपनी बच्ची के साथ क्या कर रही होती हूँ. तो basically, unconsciously, we as a parent, we as a teacher, most of the time हम अपने kids को ignore करते हैं. And we basically, you are right, we don't teach them the skills that are actually required in to cope up with the challenges in 21st century. So now the forum is open for question and answer session. उससे पहले 2 क्वेश्चंस चूंकि आई हुई थी चैट बॉक्स में तो मैंने नोट की है. मैं पहले वो आपके साथ शेयर करती हूँ and then we will take questions from the other participants. So may I request all other participants to please mute yourself. Or Dr. Hadia, can I be host now? Yes. हाँ, क्योंकि हम ये फ्री वर्जन यूज करते हैं एंड इनफैक्ट बेनिफिट लेते हैं इससे. So we need to leave and join again? No, we don't need to leave. Just give me, मेरे उस पे जो है उस पे आप क्लिक करके देखें, साइड पे ऑप्शंस में आएगा जो पार्टिसिपेंट्स में कि देयर इज एन ऑप्शन जिस पे आप host बना सकती हैं. The question I am sharing is Irfan Ali Umrani. He asked me what is the difference between mistake and mistaken behavior. So mistake is when someone does something they are not supposed to do. Mistaken behavior is an attempt to do the right thing but in a wrong way. So the difference is in inferring the intention. एक में ये समझा जा रहा है कि उसने गलती की है, एक में ये समझा जा रहा है कि उससे गलत चीज हो गई है, वो करना सही चीज चाहता है. एक और उसकी सॉरी जी और उसकी वजह ये जी ये कि प्लीज आप अपने आप को म्यूट करें जब फैसिलिटेटर इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ तो फॉर गॉड सेक अदनान अहमद प्लीज आप म्यूट करें अपने आप को. सॉरी डॉक्टर हादिया, प्लीज प्रोसीड.
No, it's okay. So the difference is basically in once we are saying कि तुमने गलत चीज की, and one in us thinking कि ये करना सही चीज चाह रहा है, इसकी कोई डेवलपमेंटल नीड फुलफिल नहीं हुई हुई, इसलिए इसके बिहेवियर में गलती है। ये गलत नहीं है, इसके बिहेवियर में गलती है क्योंकि इसकी कोई डेवलपमेंटल नीड फुलफिल नहीं हुई। एक में आप बच्चे को ये समझ रहे होते हैं कि वो जो गलती कर रहा है वो किसी पीछे के प्रॉब्लम की वजह से, और एक में आप फोकस सिर्फ उसके बिहेवियर पे कर रहे होते हैं, ये तुमने गलत कर दिया। ये फर्क। बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम एक फीडबैक फॉर्म अपने सेशन का हम हमेशा ले लेते हैं। यूसुफ ने लिंक शेयर किया है चैट बॉक्स में, तो मैं आई रिक्वेस्ट ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आप उस लिंक को ओपन करें, डिस्कशन का भी पार्ट बने और इस लिंक को आप उसके थ्रू आप हमें फीडबैक दे दें। मेक श्योर कि आपने अपना नाम सारा करेक्ट स्पेलिंग में लिखा हो ताकि वो सर्टिफिकेट पे आ जाएगा, उसी स्पेलिंग के साथ आपका नाम आ जाएगा सर्टिफिकेट में। तो यूसुफ है हमारे साथ जो वो ही इज कीप ऑन शेयरिंग द लिंक फॉर फीडबैक फॉर्म। डॉक्टर हादिया, देयर वाज वी हैव 10 मिनट्स और 10 मिनट्स को हम डिस्कशन में कर लेते हैं कि खलीक अंसारी ही आस्क हाउ डू वी डील अ बुली, इवन इफ स्कूल में टीचर्स के अमंग हो या फिर स्टूडेंट्स के अमंग हो, जिससे यूजुअली जो बुलीड है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज करता है, सो दे वांट सम टिप्स फॉर दैट। सो देखिए, इसमें दोनों को हेल्प की जरूरत होती है। जो बुली हो रहा होता है उसको भी हेल्प की जरूरत होती है और जो बुली होता है उसको भी हेल्प की जरूरत होती है। और इसमें ये जो बुली होता है, जो बुली हुआ होता है, उसको तो बेसिकली सपोर्ट की जरूरत होती है, उसको ये समझाने की जरूरत होती है, उसको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी होती है, और उसको ये समझाना होता है कि बुलीज को खामोशी से टॉलरेट नहीं करना। That is with the one who is bullied. अब ये बात आती है कि जो बुली है उसका क्या करें। तो ये तो एक बहुत ही, आप ये समझें कि कॉम्प्लेक्स इशू है। कोई एक चीज नहीं करनी होती, उनके साथ बहुत सारी चीजें करनी होती है। They have to face the natural consequences of their actions. अगर उन्होंने किसी को हर्ट किया है तो उसका जो लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए, जो आपका एक स्कूल की पॉलिसी है, उसको जरूर फॉलो होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को हर्ट करता है तो उसके लिए फिर उस बच्चे के लिए स्कूल ने क्या सिस्टम सेट किया हुआ है। दूसरी बात, इस बात को समझिए कि पैदा कोई बच्चा बुली नहीं होता। अगर वो दूसरों को बुली कर रहा है तो जब वो बड़ा हो रहा था उसके साथ कुछ इस तरह का हुआ है जहां पे या तो अगर वो अग्रेसिव होता था तो उसको कोई रोकता नहीं था तो वो अग्रेसिव हो गया, या फिर घर पे उसको तवज्जो नहीं मिलती। कुछ बच्चे होता है ना कि जिन्हें अटेंशन ही सिर्फ तब मिलती है जब वो बदतमीजी करते हैं, और जब तक वो बदतमीजी नहीं करते उनको कोई पूछता ही नहीं है। दूसरी जो चीज चेक करने वाली होगी वो ये होगी कि कहीं वो नेगेटिव अटेंशन के लिए तो दूसरे बच्चों को तंग नहीं कर रहा। तीसरी चीज ये भी समझनी होगी इन एवरी इंटरेक्शन के किन लोगों को वो टारगेट करता है और किस तरीके से बुली करता है। हर केस में there is no substitute for individual attention that both of these students. डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहिए और आपको उस बुली के साथ रेगुलर मीटिंग्स, एक मीटिंग नहीं रेगुलर मीटिंग्स करनी चाहिए, ये समझने के लिए कि ये करके व्हाट दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अचीव। तो ये एक मुश्किल लेकिन इम्पॉसिबल टास्क नहीं होता, लेकिन अगेन इसमें मल्टीपल तरीके यूज करने। जी, अगला क्वेश्चन शुरू करें। ग्रेट। अगर जी ओवर टू यू पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप अपने अनम्यूट करें एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन, एंड अपॉर्चुनिटी से आप बिल्कुल फायदा ले लें। So I saw a message in the chat box. Someone was asking that there is a student who talks in home but they do not talk when they come in class. So again, I need to understand the age of the student. It will depend a lot on the age of the student. अगर वो कोई छोटी उम्र की जो भी है, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर दें ताकि उसको
बात की जा Okay, सके। Assalamu alaikum. Can I say something? Yes, please do. Okay, the basic issue what I think we have now is acceptance for parents to accept their children's mistakes and where they are lacking behind. Parents don't accept, they blame the teacher. This is the main issue. So this is very difficult to make parents understand. See, this is the issue your child is facing, and please help us. Together we can make it. So, But they don't so, cooperate. so, जी, so what we need to understand here is कि जब हम ये बात कह रहे हैं, तो आप देखिए हम क्या बात कर रहे हैं. We are trying to give responsibility of whatever is going wrong on the parents. हमें ये समझना है कि पेरेंट्स किसी हद तक गलत करते हैं, लेकिन अगर हम उनसे बात इस तरह करेंगे कि आप इस चीज को देख लें, आप घर में ये चीज क्यों नहीं करते, तो उनको वो डिफेंसिव पे आ जाएंगे. एंड पेरेंट्स के अपने भी इश्यूज होते हैं. इस केस में बहुत अच्छा ये रहता है कि जब पेरेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि आपके स्कूल में ऐसा नहीं हो रहा, तो लेट्स टेक द फीडबैक पॉजिटिवली एंड सी कि क्या वो सही तो नहीं कह रहे, कहीं हम स्कूल में इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चा एक टीचर के साथ, तो अगर वो बच्चा किसी 2-3 टीचर्स के साथ सही है और 1-2 टीचर्स के साथ सही नहीं है, तो वो अपनी कैपेसिटी दिखा रहा है टू engage in positive behavior. उसमें कैपेसिटी है. अगर वो किसी के साथ भी नहीं हो रहा, तो आप ये कह सकते हो कि शायद उसमें कैपेसिटी. तो पहले तो मैं कहूंगी कि बिफोर टॉकिंग टू पेरेंट्स, हमें पहले देखना चाहिए कि हमारे इन्वायरमेंट में इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है, स्पेशली अगर वो बच्चा किसी के साथ डिफरेंट है और किसी दूसरे के साथ डिफरेंट. दूसरी चीज ये है कि अगर जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं, तो अगेन रादर देन टेलिंग देम, जो अभी हमने अपने सेशन में डिस्कस किया कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए, उनको ये बताना कि उन्हें क्या करना चाहिए, रादर देन कि आप इनको इतनी देर तक मोबाइल पे बैठने ना दिया करें. इससे बहुत बेहतर एडवाइस होगी कि अगर आपने उनको मोबाइल देना है, तो आप उनके कोई पर्टिकुलर आवर्स एलोकेट करें. हमें इसमें समझने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, तो देखिए हमारा कल्चर, प्लीज किसी को ये बात बुरी ना लगे, लेकिन वी आर अ ब्लेमिंग कल्चर. हमारे यहाँ कोई बीमार हो जाता है तो हमें लगता है कि किसी ने नजर लगा दी है. हमारे यहाँ कोई चीज हो जाती है तो हमें लगता है कि तो पेरेंट्स को भी तो ब्लेमिंग की आदत True. है ना. वी आर अ ब्लेमिंग कल्चर. तो वो उनके लिए मुश्किल होगा. हम देखिए, बी रियलिस्टिक इन योर एक्सपेक्टेशंस, डू व्हाट यू कैन, बट व्हेन यू टॉक टू देम, focus on what they can do rather than what they should not be doing. And even if you tell them what they should not be doing, उसको present ऐसे करें that they get a guideline on what to do. Great, Dr. That Hadia. might help. डॉक्टर हादिया, आपकी Thank you. इसमें डायरेक्ट हमारा टाइम फुल शॉर्ट रह गया है, तो डायरेक्टर है हमारे साथ ताइब जान, तो वो एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं. इनफैक्ट अपना ताइब जान साहब, you want to add something? Hello, assalamu alaikum. I didn't know I had to speak here. Dr. Adya Pasha, I'm really very thankful to you. I am an alumni of the QID, but I didn't get a chance to meet you or learn from you. But today is a good learning experience we are having. And yeah, hopefully everybody liked it. And I'm thankful to all the participants who are very actively engaged here, and they will be writing to us. So yeah, only point is to say thank you to all of you, and thank you, Dr. Adya Pasha. Really, it was an amazing session. I mean, it is an amazing session because it's going on. I don't know if you have a few more questions that you can take. इनफैक्ट हमारे पास जो टाइम है खत्म हो गया है, तो thank you so much, Dr. Hadia, for such a useful session, and I'm sure it will help to our kids to grow well. It was really an amazing session for parents like me and teachers. So
थैंक यू सो मच. आई न्यू कि जितना आप बिजी थी पिछले काफी अरसे में, डिस्पाइट दैट बिजी स्केड्यूल यू स्पेयर टाइम फॉर अस. तो हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स थे वो नेपाल के, इंडिया से पार्टिसिपेंट्स हैं, से ज्वाइन किया हुआ था उन्होंने, और डिफरेंट अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए थे आज, इनफैक्ट ज्वाइन किया हुआ है. तो ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच हमेशा हमारे वेबिनार्स को सक्सेसफुल बनाने का. तो Thank you so much. Thank you so much. you're welcome. And I'm sure keep in touch with us, keep attending the webinars, and in fact Sure. it's Certainly. इस प्लेटफॉर्म की हम एक दूसरे से सीखें. So thank you so much. Thank you for inviting. Thank you Shagufta. so It was much. a pleasure for me too. Thank I you, could Dr. see very Hadia. lot of IB students, and I'm very happy to be in touch with all the participants. Really, it was a pleasure to have you. Thank you. Bye bye. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you.